Hey guys, hope all of you are doing great and today we are going to do the chapter test of body fluids and circulation. ठीक है बच्चे, लास्ट वीक हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करा था. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच इट. दिस इज द 5th सेशन. तो नंबर 1, 2 एंड 3 सेशन में हमने पूरा खत्म करा था चैप्टर. 4th सेशन में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे. ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर टेस्ट. होप यू हैव प्रिपेयर्ड एंड कम. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ जी, यस. एंड गाइज, आपको जैसे पता है Vedantu में we are having amazing courses for term 2. Especially for term 2, guys, there is a course running on, है ना, and the cost of the course is very less. There is 50% off because of education festival, क्योंकि year end होने वाला है and you know term 1 has just ended. 50% off है on all the courses. Trust me guys, you should definitely make use of it. एक बार try जरूर करना, है ना. When you use the code ARAPRO, you will get 50% off on all the courses, है ना. 15 days लिखा हुआ होता है, but you will get additional 15 days. तो total 1 month subscription you can guess for, I guess, 500 or 600 rupees. You should definitely try it out, guys. अगर आपने अभी तक try नहीं करा है, thousands of people are enrolled. एक बार try कर लो. This 500 or 600 rupees is for 4 subjects: physics, chemistry, mathematics, biology. समझ लो, I used to pay 2,000 rupees for one subject. So that is very very affordable. I would say at least enroll into it. क्या पता benefit हो और आप continue करो. 90% बच्चे continue करते हैं. अच्छा नहीं लगता तो it is okay. You can leave it off because 500 rupees I would say is very affordable. वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं. Benefits क्या क्या होते हैं guys? You get doubt sap, है ना, all your doubts solved. Conceptual clarity you will get, है ना. More question assignment. Lagging behind the syllabus, we will help you cover your syllabus. Looking for a revision plan, we will give you a revision plan. You can choose your batch, Hindi or English. Periodic test होते हैं. Every 15 days you have a test. ठीक है बेटा, so that you can practice more and more questions. And you have micro courses going on in addition to that, जिसमें आप अपना term 1 का अगर backlog है वो भी cover कर सकते हो, term 2 का भी कर सकते हो. I hope you're understanding. So this is very affordable and you should definitely enroll into these classes. Okay, perfect. बट ये एजुकेशन फेस्ट 1 जनवरी तक चलेगा, है ना. तो ट्राई टू गेट इट ऑन दिस, है ना. परफेक्ट. व्हाट आर द कोर्स, व्हाट इज द कोड यू आर सपोज्ड टू यूज? यू आर सपोज्ड टू यूज द कोड ARAPRO. दिस इज द कोड व्हिच यू विल use so that you can get 15 plus 15 extra days, where you will get 30 days. That is 1 month subscription for 400 or 500 rupees. Perfect. Going forward, yes, तो ये लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था. सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन. यस गाइस, इट लैक्स क्लॉटिंग फैक्टर. जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ना बेटा, तो उसके बाद जो ब्लड निकलता है वहां से, मतलब जो फ्लूइड निकलता है आपके वूंड से, दैट इज सीरम. और उसमें कहता है क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो चुके होते हैं. ठीक है, तो ये सारे हमारे बच्चे हैं: शमुन सैफी, राज गुप्ता, सैडी ईरा एंड राधे कृष्ण चैनल कविता. ग्रेट जॉब. भूमि शर्मा एक्चुअली, ग्रेट. ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनो. अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टेस्ट. ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना. आई विल शो यू द क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क द आंसर योरसेल्फ, है ना. आफ्टर 10-20 सेकंड्स आई विल शो यू द आंसर. ठीक है, और एंड में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं. ठीक है, दिस सेशन विल बी फॉर 20 to 30 मिनट्स. पूरा का पूरा टेस्ट कर लेंगे. ठीक है, रेडी? परफेक्ट. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ो, 3 सेशन देखो और फिर आके करना टेस्ट. ठीक है, ग्रेट. द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ द ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन अडल्ट इज 5 to 11 milligram, 25 to 30 milligram, 17 to 20 milligram, or 12 to 16 milligram. Come on guys. 5, 4, 3, 2, 1. I'll give you 10 more seconds. Yes, सोचो इसका जवाब क्या होगा. Yes, come on guys. Done. I'll show you the answer. Exactly बेटा, it is 12 to 16 milligram हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में. बेटा क्या होता है, कई बार ना ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो these factual questions also we are supposed to learn थोड़ा बहुत. Next one. One of the common symptoms observed in people infected with dengue fever is. डेंगू में क्या होता है? Significant decrease in RBC, decrease in WBC, decrease in platelet और increase in platelet. ये तो बहुत ही कॉमन है. अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल भी देखोगे आप कर सकते हो. बताओ. यस, एग्जैक्टली बेटा, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है. बच्चे कहते हैं प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है? बेटा देखो, डेंगू फीवर जो है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ वायरस. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ वायरस. ठीक है, अब ये वायरस क्या करता है बेटा? इट अटैक्स द प्लेटलेट्स.
ये जो वायरस है ये हमारे प्लेटलेट्स को अटैक करता है। द वायरस अटैक्स द प्लेटलेट्स, है ना बेटा। जैसे HIV/AIDS वाला हमारे WBC को अफेक्ट करता है, ये वाला किसको अफेक्ट करता है, ये हमारे प्लेटलेट्स को अटैक करता है। ठीक है बेटा, प्लेटलेट के काउंट तभी कम हो जाता है। यस, दैट इज द सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? lymph, plasma, RBC plus WBC, blood is equal to plasma plus RBC plus WBC, yes, plasma is equal to blood, lymphocyte, serum is equal to blood plus fibrinogen. Come on guys, try this out. Which one of the following is correct? Yes, come on, easy है exactly beta. Serum is equal to blood plus fibrinogen. Okay बेटा, ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन होगा बेटा। ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन नहीं है, आई गेस ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन होना चाहिए। lymph is equal to plasma plus RBC plus WBC, blood is equal to plasma plus RBC. But the answer is option B, not C. Blood is equal to plasma plus this thing. So guys, answer option B है, not C. This is not the right answer. Answer is option B. Blood is equal to, blood में क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ये तो हमने देखा था स्टार्टिंग में। Yes, answer is option B. ठीक है, not D. Perfect. Identify the following blood vessels. Yes, A, B, C. देखो ये है हमारा A, ये है B, ये है C. Identify the blood vessel. कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C है? Come on. Yes guys, A is, देखो ध्यान से देखो, इसका ल्यूमेन छोटा है, इसकी वॉल्स थिक है। A is artery, B is vein and C is capillaries. Answer is option D. है ना बेटा? क्यों? Arteries have a thicker muscular wall, narrow lumen, veins का lumen थोड़ा बड़ा होता है। ओके नहीं, तो B is artery. This guy is B is artery, A is vein and C is capillaries. Yes, answer is option C. My bad. Answer is option C. है ना बेटा? क्यों? ल्यूमन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इसका जो मस्कुलर वॉल्स हैं ये बहुत ही थिक होती हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। परफेक्ट, है ना? जो बता रहा था, वेन्स हैव ब्रॉडर ल्यूमन एंड वेन्स हैव वॉल्स आल्सो। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, द QRS कॉम्प्लेक्स इज अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। ये QRS को क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स और डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। ये हमने करा हुआ है, मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। लेट इट बी टर्म एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स और बी इट नीट ऑल्सो। यस, QRS कॉम्प्लेक्सेस गाइस, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और ये क्या होता है? टी, जब सारे रीपोलराइज हो जाते हैं। है ना बेटा? नेक्स्ट वन, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकेंड साउंड इज हर्ड व्हेन। है ना, मैंने बताया था ना, लब डब सुनते हैं, तो वो सेकेंड साउंड क्यों होता है? वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया, या फिर सेमिलुनर वॉल क्लोज डाउन आफ्टर ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। AV node receives signal from SA node, AV walls open up. What's the answer for this guys? डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करके सेकेंड साउंड क्यों होता है? Come on, very easy बेटा। फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ, yes, bicuspid and tricuspid valve, and the second sound is produced by closure of the semilunar valves। है बेटा, semilunar valves जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में होते हैं, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होते हैं। ठीक है, परफेक्ट। 10, another good question, match the given following. Okay, column 1 and column 2. Tricuspid valve between left atrium and left ventricle, bicuspid valve between right ventricle and pulmonary artery, semilunar valve between right atrium and right ventricle। है बेटा, pulmonary artery है। ठीक है, इसका आर्टरी यहाँ पे घुस चुका है। बट एनीवेज, ट्राई सोचो,
बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है बताया था मैंने, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है? वेरी इजी गाइस, मैंने एक टेक्निक भी बताई है। यस एग्जैक्टली, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। देखो ट्राई में आर है, यहां पे भी आर है। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, सेमिलुनर वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच, अभी बताया था मैंने। यस, आंसर इज ऑप्शन ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2। परफेक्ट, ग्रेट। नेक्स्ट वन, वेरी गुड क्वेश्चन। The cardiac impulse is initiated and conducted further up to ventricle. The correct sequence of conduction of impulse is SA node, AV node, Purkinje fiber, AV bundle. SA node, Purkinje fiber, AV node, AV bundle. SA node, AV node, AV bundle, Purkinje fiber. SA node, Purkinje fiber, AV bundle and AV node. Come on. Try guys. Come on everyone, try. यस, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है बेटा, फिर कहा जाता है यस एवी नोड, फिर एवी बंडल एंड देन यस गाइस ये गलत है बेटा, ये आंसर गलत मार्क हो रखे हैं, ठीक है। देखो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, फिर एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिज और फिर परकिंजे फाइबर पे जाता है, ठीक है। तो ऐसे नोड, एवी नोड, आई वुड से एवी बंडल and then Purkinje fibers. Yes guys, answer is option C, AV bundle here guys, I guess it is bundle of his, okay, AV bundle is bundle of his, जो bundle of his AV node से निकलते हैं, ठीक है। The answer is option C, not D। I guess आज थोड़ा options गलत मार्क हो रखे हैं, ठीक है। Purkinje fiber तो यहाँ पे नीचे की तरफ होते हैं। Next one, a unique vascular connection that exists between the digestive tract and liver is called, yes, a unique vascular connection that exists between the digestive tract and the liver is called renal portal system, hypothalamic hypophyseal portal system, hepatic portal system or all of the above। बताओ पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा? पोर्टल सिस्टम वो होता है जब ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट गोज टू अनदर ऑर्गन। जैसे कि हमें क्या सुना है, आर्टरी आती है, ब्लड लाती है ऑर्गन पे, और वेन ब्लड लेके जाता है ऑर्गन से। तो ये जब वेन लेके जाता है ये वापस हार्ट पे लेके जाता है ताकि ऑक्सीजनेट हो पाए। बट कई बार क्या होता है, ऑर्गन से इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट इट गोज टू सम अदर ऑर्गन। ये दो जगह होता है, एक होता है बेटा यस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में होता है, एक होता है यस गाइस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो कि ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है, और ये होता है बेटा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। इट इज आंसर इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो होता क्या बेटा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन है ना वो जाती है हमारे लिवर पे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड सारा स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लिवर पे जाता है, विच एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि पूरे खाने को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट वन, कार्डियक सेंटर कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कम ऑन, जो हमारा कार्डियक सेंटर है हमारे हार्ट बीट को कैसे मैनेज करता है? यस गाइस, आपको याद है हमने पढ़ा था ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है मैनेज करने में। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा वो आपको प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, मतलब ये हार्ट बीट बढ़ाता है तो ये वापस नॉर्मल करता है। नेक्स्ट वन, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस पार्ट ऑफ ANS इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट बिकॉज ऑफ increasing heartbeat, increasing strength of ventricular contraction, both A and B, increasing the stimulation of vagus nerve। तो मैंने बोला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड बढ़ाता है, वो कैसे बढ़ाता है बताओ? हार्ट रेट को बढ़ा के, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को बढ़ा के बढ़ाता है, या दोनों करके बढ़ाता है, या इंक्रीजिंग द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व? कम ऑन गाइस, आंसर इज दोनों चीजें करता है। हार्ट रेट भी बढ़ाता है और वेंट्रिकल्स को भी तेज तेज पंप करने को बोलता है ना बेटा। तो it is also called as beta sympathetic and parasympathetic nervous system, they also help us to fight or flight also, ठीक है। Perfect। The given figure shows schematic plan of blood circulation in humans। A to D आपको आइडेंटिफाई करना है, A B C D, ये बेटा एग्जाम में भी आया हुआ था। आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिव इट्स फंक्शन, ठीक है। C, vena cava takes blood from body parts to the right auricle, इसमें concentration of carbon dioxide is 45
mm of mercury. D, dorsal aorta takes blood from heart to body parts. नहीं, ये तो हमारा कहाँ ले जा रहा है बेटे, तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग के पास जा रही है तो दिस इज रॉन्ग. अ पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. ए, पल्मोनरी वेन है हाँ, टेक्स इम्प्योर ब्लड. नो, इट इज टेकिंग द प्योर ब्लड फ्रॉम द lungs to the heart. Pulmonary artery. B, pulmonary artery. No, answer is option A. C is Vena cava takes blood from the parts of the right, from body से right atrium में डालती है ना बेटा. Perfect. और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. Good one. Find the incorrect matching. CAD, atherosclerosis, angina, angina pectoris, stroke volume is equal to beat volume, heart failure is equal to heart attack. Come on. Yes, exactly बेटा. आंसर इज दिस. हार्ट फेलियर इज कार्डियक अरेस्ट. देखो बेटा, मैं बताता हूं आपको होता क्या है. कार्डियक अरेस्ट होता है कि आपका हार्ट रुक गया, बस खत्म, यू आर डेड. हार्ट अटैक में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, उसकी वजह से हार्ट के सेल्स जो वो मरने लगते हैं. तो ठीक है, अगर आपने सही टाइम पे उसको हॉस्पिटल ले गए तो अगर आपके बहुत ज्यादा सेल डैमेज नहीं हुए हार्ट के तो आपका हार्ट बच जाएगा. तभी आपने देखा होगा बहुत सारे कहते हैं हार्ट अटैक आ गए, इनको 2 अटैक आ रखे हैं, इनको 3 अटैक आ रखे हैं. व्हाट डू मीन बाय 2 अटैक 3 अटैक? मतलब पहले अटैक में इनका कम सेल डैमेज हुए थे, सेकंड अटैक में भी कम सेल डैमेज हुए, मतलब हार्ट इज एबल टू फंक्शन irrespective of the damaged cells. The heart is able to function. That is what they say heart attacks. Cardiac arrest is the heart stops beating. There is no, you cannot come out of it. Okay, they give electricity. वो कहते हैं ना, कार्डियक अरेस्ट के केस में वो इलेक्ट्रिसिटी पंप करते हैं ताकि वो बच जाए. ठीक है, नेक्स्ट वन. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of a diastole is 100 ml and the end of a ventricular systole is 50 ml. अच्छा, कार्डियक आउटपुट क्या है बेटा, 5 लीटर है. ठीक है, डायस्टोल में 100, तो एक बार में ये कितना पंप करता है, 50 ml पंप करता है. तो ये कितना हुआ, 5000 ml by 50 is equal to 100. Yes guys, 100 beats per minute. Yes, answer is 100 beats. कार्डियक आउटपुट हमें पता है ना बेटा. तो ये क्या है, एंड ऑफ डायस्ट मतलब टोटल 50 ml पंप कर रहा है. हार्ट बीट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा, टोटल ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बार में कितना पंप करता है वेंट्रिकल से. स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकलता है, कितना निकलता है. अभी हमने देखा कि 50 ml निकलता है, डिवाइडेड बाय कार्डियक आउटपुट, यू गेट 100 per minute. A person with unknown blood group ABO system has suffered more blood loss in an accident and needs an immediate blood transfusion. His one friend who has a valid certificate of his own blood type offers the blood donation without delay. What would have been the type of a group of a donor friend? Accident हो गया, कुछ हमें blood group पता नहीं, तो उसको क्या, कौन सा blood देंगे? Universal donor. Who is a universal donor? O blood group is a universal donor. AB is a universal recipient. है ना, अगर हमें देना ही है तो हम यूनिवर्सल डोनर वाला ब्लड देंगे ताकि चांसेस ऑफ ये सर्वाइवल ज्यादा हो और मिसमैच कम हो जाए. और सच रीजन गाइस, SA node is called as the pacemaker of the heart. मैंने बताया ना, देखो हमेशा चेक करा करो असर्शन ट्रू है फॉल्स है, रीजन ट्रू है फॉल्स है. अगर ये आपने कर दिया फिर दोनों ट्रू है तो बस ये चेक करा करो कि ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं. ठीक है, ऑप्शन इज assertion and reason are true and the reason is the correct explanation. Both assertion and reason are true, but it is not explaining it, reason. If assertion is true and reason is false, if both assertion and reason are false. ठीक है, SA node is called as the pacemaker of the heart. Yes, true. It is responsible for initiating and maintaining the rhythm of the heart. This is also true. तभी हम इसको, क्या ये इसको कहता है, हाँ, इसलिए तो इसको हम pacemaker कहते हैं. Answer is option A. Next one. Human heart is myogenic. हाँ भैया ट्रू है, ये अपने इंपल्सेस खुद बनाता है. नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली बाय स्पेशलाइज्ड मसल. मतलब मायोजेनिक है और उसकी एक्टिविटीज वो खुद ही कंट्रोल करता है, खुद ही बीट करता रहता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक. यस, आंसर इज ऑप्शन ए अगेन. सीरम इज एबल टू क्लॉट ब्लड. क्या सीरम ब्लड क्लॉट कर सकता है? नहीं, फॉल्स. क्यों? क्योंकि इसमें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं होते. सीरम इज व्हाट, blood minus clotting factors. Serum contains all clotting factors required for clotting of the blood. ये भी हमारा false है. If both assertion and reason are false, answer is option D.
Erythroblastosis fetalis not observed during the first pregnancy, although fetus is RH positive and mother is RH negative. हाँ ट्रू, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेटा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नहीं होती. RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta. ये भी सही बात है. बट क्या होता है बेटा, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है ना मदर की, तब क्या होता है, जो मदर का ब्लड है कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ द बेबी. उस वक्त वो होता है ना लहू मुंह लग गया टाइप. फिर अब RH एंटीजन को समझ आ जाता है कि भैया ये RH पॉजिटिव, मतलब RH एंटीजन ऑफ द फीटस देन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मदर. तो मदर की बॉडी RH एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है RH एंटीजन के अगेंस्ट. तो जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो देखो ब्लड नहीं जा सकता बट एंटीबॉडीज तो पास कर सकती है. तो एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू जाके वो फीटस को मार देती है. बट यस वी हैव, अभी क्या होता है कि एंटीबॉडी सप्रेसेंट्स दे देते हैं. अगर हमें पता चल जाता है कि मदर इज एंटीबॉडी नेगेटिव, मदर इज RH नेगेटिव एंड द चाइल्ड इज पॉजिटिव, तो हम टेक केयर करते हैं एंड मेक श्योर दैट सेकंड डिलीवरी आल्सो इज नॉर्मल. ओके, इट इज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट. तो यस दिस इज आल्सो ट्रू एंड इट इज आल्सो एक्सप्लेनिंग इट. आंसर इज ऑप्शन ए. लास्ट क्वेश्चन, spleen is called as the graveyard of RBC. Yes, it is a true statement. RBCs are destroyed in the spleen after completing their average lifespan of 60 days. No, they have average lifespan of 20 days. A is true, R is false. Answer is option C. Yes. मजा आया जल्दी जल्दी करके. I loved it. है ना बच्चे? तो yes, do let me know आपका स्कोर क्या है. Yes everyone, मुझे बताओ आप लोगों का स्कोर क्या है. आउट ऑफ 20 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट राइट. And this is a homework question. The second hard sound dub is associated with the closure of what? Okay, out of 20, how many questions you got right? है ना? Do let us know. And guys, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, वेदांतु में there is 50% off on all the courses and you can use this code. और अगर आपने अभी तक एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो प्लीज try it out at least once. It will definitely benefit you. one month का. There's a 15 days trial. If you use the code, you will get 15 plus 15. That is 30 days when you use this code. Okay. And term 2 guys, you don't have much time. Term 2 के लिए आपके पास December almost खत्म हो चुका है. There's only 1 month left. Like December, January, February, 2 months left. So make use of it. Okay. 500 rupees around if you are getting all the 4 subjects, physics, chemistry, maths, biology. It would be ऊपर नीचे होगा बेटा. But trust me, it is very much affordable and very much beneficial and very much, I would say, needed for you. Just enroll into it, check it out. एक बार try करो, अच्छा ही लगे तो दोबारा मुड़ के ही मत देखना. But you have to try it out once also. Okay? So keep smiling guys. I see you in the next video. है ना? Do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel. You can follow me on Instagram. You can write to me on amrit.raj@vedantu.com. And have a great day. Lots of love. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. I'll see you in the next class guys. Take care. Bye-bye.